Assalamu alaikum students and good morning. Today we are going to start the next topic, which is heat capacity. Chapter number 11, thermochemistry, and today's topic is heat capacity. And here you can see the definition of the heat capacity, that what is the definition of the heat capacity. Now see, the amount of energy required to raise the temperature of an object or a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called heat capacity. Any object, the temperature of any object or a substance, if raised by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, this is known as heat capacity. What is the definition of heat capacity? When the temperature of any object or a substance is raised through 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as heat capacity. Here you can see the symbol of the heat capacity. That what is the symbol of heat capacity? Heat capacity is denoted by capital C. This capital C is the symbol of heat capacity. Now here we are two conditions for determining the heat capacity. Heat capacity determine की जाती है either at constant volume or either at constant pressure. The heat capacity can be determined either at constant volume, and the heat capacity that determined at constant volume is represented by CV. You can see here CV represents the heat capacity at constant volume, and Cp represents the heat capacity at constant pressure. So the heat capacity can be determined either at constant volume or at constant pressure. So Cv represents the heat capacity at constant volume, and Cp represents the heat capacity at constant pressure. There are two conditions for determining the heat capacity. को determine करने के ये दो हमारे पास condition है. Symbol जो है वो इसका क्या है? Symbol इसका है capital C. And now come to the units. Units है आपके पास, दो units मैंने लिखे हैं. Again मैं screen पर भी लिख देती हूँ आप लोगों के लिए. Joule per gram per degree Celsius होगा इसका जो unit है, या फिर होगा Joule per mole per degree Celsius. ये दो यूनिट्स होते हैं. नाउ इट डिपेंड्स दैट आइदर यू आर टेकिंग योर सब्सटेंस इन ग्राम और आइदर यू आर टेकिंग द सब्सटेंस इन मोल. इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ योर सब्सटेंस, कि आपका जो मास है वो आपने ग्राम्स में लिया है या आपने अपना मास जो है वो मोल में लिया है. तो इस चीज़ पर ये strongly डिपेंड करता है. If the substance is in a mole, then the unit will be converted into joule per mole per degree Celsius. और अगर आपने अपना substance grams में लिया है, then the unit will be joule per gram per degree Celsius. So जिस तरह हमारे पास conditions दो थे कि heat capacity या तो constant volume पर या constant pressure पर, दोनों में से किसी एक को constant रख के heat capacity मालूम की जाती है. इसी तरह units भी या तो joule per gram per degree Celsius होगा या फिर joule per mole per degree Celsius होगा. Now come to the specific heat capacity. What is specific heat capacity? Here you can see the definition of the specific heat capacity. Specific heat capacity में वो आपको बता देता है कि आपका जो amount है substance का वो कितना होना चाहिए. See here the definition. The amount of energy required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called specific heat capacity. Clear cut उसने बताया है कि अगर आपका given substance 1 gram के equal हो और उस 1 gram का टेम्परेचर आप रेज करो up to 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as the specific heat capacity. हीट कैपेसिटी में सिंपल आपको क्या बताया गया था कि जब हम किसी भी अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का, मतलब अमाउंट जो थी वो हीट कैपेसिटी में बताई नहीं गई थी. हीट कैपेसिटी में सिंपल क्या था कि हीट कैपेसिटी आपके पास
वो एनर्जी है जो कि रेज करे किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को अप टू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक उसको रेज करे। टाइप्स में जब हम आ जाते हैं तो जो हीट कैपेसिटी है उसकी दो टाइप्स है। एक आपके पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरा हमारे पास है मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। अब इन दोनों में हम फ़र्क भी देखेंगे, पहले दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे, देन उसके दरमियान फ़र्क क्या है। हीट कैपेसिटी तो आपको समझ आ गया कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी, कि किसी भी अमाउंट की वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर हो कि हम किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को रेज करें अप टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। Now I am going to repeat all the definition in English, that the amount of energy required to raise the temperature of an object or of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as heat capacity. हीट कैपेसिटी की सिंबल भी आपने देखी। अब स्पेसिफिक में वो क्या बात कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called specific heat capacity. क्लियर कट आपको उन्होंने अमाउंट बताई है कि 1 ग्राम हो, सब्सटेंस मस्ट बी इन 1 ग्राम, उस 1 ग्राम के सब्सटेंस की टेम्परेचर को बढ़ाने को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। नाउ सी, जब आपका सब्सटेंस 1 ग्राम मतलब ग्राम्स में हुआ तो आपका यूनिट भी क्या हो जाएगा, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ मैंने 2 यूनिट्स लिखे थे ना, तो आपका ये यूनिट जो है आप इस्तेमाल करोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। सो अगेन वी आर गोइंग टू दी नेक्स्ट वन, कि जो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से CS, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड by CS. Now you can see that CS is the specific heat capacity. Formula, look at the formula, Q divided by M multiplied by delta T. CS is equal to Q divided by M multiplied by delta T. Now CS is the specific heat capacity and Q is the amount of heat given to the substance, and M is the mass of a substance, and delta T is change in temperature. You can see it in your notes. CS specific heat capacity, Q the amount of heat given to the system, and Q के आपके पास Q की 2 वैल्यू होती है। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि Q प्लस फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन and minus Q for the exothermic reaction. Q की वैल्यू पॉजिटिव में होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन में और Q की वैल्यू नेगेटिव में होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंड डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ मैंने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं और उनके सामने मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखे हैं कि वाटर, और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू है इट इज़ 4.184 जॉल पर डिग्री पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड ग्लास की है आपके पास 0.8 जॉल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड आयरन की आपके पास है 0.450 जॉल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ वाटर, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of water through 1 degree Celsius. Similarly, in case of glass, that amount of energy is required to raise the temperature of 1 gram of a glass. And iron में भी आपके पास यही है। मीन्स कि हर सब्सटेंस का हमारे पास अलग अलग जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। सो ये हीट कैपेसिटी की आपके पास वैल्यू हो गई। नाउ कम टू दी नेक्स्ट वन, दिस इज़ द सेकेंड टाइप है उसकी। अभी उसकी क्या है, सेकेंड टाइप है मोलर हीट कैपेसिटी। नाउ कम टू द मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में हम क्या करते हैं,
जैसे कि हम लोगों ने कहा कि हीट कैपेसिटी क्या होती है कि किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या आपके पास 1 केल्विन तक बढ़ाने का नाम है। देन वी कम टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें हम लोगों ने स्पेसिफिकली अमाउंट बताया था कि 1 ग्राम होना चाहिए। मोलर में भी स्पेसिफिकली वो अमाउंट ही बताता है कि आपका जो सब्सटेंट है इट शुड बी 1 मोल, it should be 1 mole. The amount of energy which is required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called the molar heat capacity. Molar heat capacity क्या होती है आपके पास? Molar heat capacity can be determined when the amount which is given to you, it must be in 1 mole, and the energy which is required to raise the temperature of 1 mole of a substance बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अब आप अगेन आ जाए यूनिट्स पर। जब हम यूनिट्स पढ़ रहे थे तो उसमें एक यूनिट क्या था? जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और एक आपके पास यूनिट था जाउल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। एंड एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि आपके जो यूनिट्स है वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी चीज़ स्टडी कर रहे हो। आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टडी कर रहे हो या आप मोलर हीट कैपेसिटी स्टडी कर रहे हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें जो गिवन सब्सटेंस था उसका मास 1 ग्राम के इक्वल था, तो हमारा ये यूनिट जो है हम इस्तेमाल कर रहे थे। मोलर हीट कैपेसिटी में हमारा जो गिवन सब्सटेंस है वो 1 मोल है, एंड देन वी आर यूजिंग दिस। ठीक है, 1 मोल है तो हम ये यूज़ करेंगे, और 1 ग्राम था तो हम लोगों ने ये यूज़ किया था। दोनों आपके पास यूनिट गिवन है। नाउ मोलर हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। नाउ यू कैन सी हियर मोलर के बाद मैंने स्पेसिफिक लिखा है, जो स्पेसिफिक जो है ये गलत है। मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, स्पेसिफिक नहीं। मोलर हीट कैपेसिटी, अगेन आप डेफिनेशन को देखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर heat capacity, and the symbol of the molar heat capacity is Cm. Now come to the formula that how we can determine the molar heat capacity. मोलर हीट कैपेसिटी मालूम करने से पहले आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उस सब्सटेंस का मोलर मास जो है इन दोनों का पता होना चाहिए। मोलर हीट कैपेसिटी Cm हम डिटरमिन करते हैं किस चीज़ को मल्टीप्लाई करके? Cs को। Cs इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, उस सब्सटेंस का जो मोलर मास होगा और जो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी Cm की, मोलर हीट कैपेसिटी की। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर टुडे लेक्चर जो कि हीट कैपेसिटी से स्टार्ट हुआ था। हीट कैपेसिटी क्या है और उसकी कितनी टाइप है? हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, बोर्ड पर, और उसकी टाइप्स 2 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि मोलर के साथ मैंने स्पेसिफिक लिखा है, जो कि आप लोगों ने क्या करना है, मिटा देना है। दिस इज़ द मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर इज़ द मोलर। ये 2 आपके पास अलग अलग टाइप्स है हीट कैपेसिटी की, दोनों के अलग अलग यूनिट्स है और दोनों के अलग अलग फार्मूलाज है इनको डिटरमिन करने के लिए। एंड स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ टिल टू नेक्स्ट लेक्चर। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, थर्मोकेमिस्ट्री, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री विच इज़ हीट कैपेसिटी। Thank you students and Allah Hafiz till to next lecture.